Hello kids, welcome to my channel Online Math Study Time. Today I am here with class 6 Math chapter 2 Whole Numbers. Okay, in my last video I discussed about the definition of whole numbers. What are the whole numbers? I introduced that, and then I also taught about the natural numbers. What is the difference between whole numbers and natural numbers? So we discussed all these points. So I introduced about whole number. As I told you, we discussed about comparing two whole numbers, how to compare two whole numbers, what are the predecessors and successors, and then I discussed about the important facts related to the whole numbers. Okay, that I discussed these 4 topics I have discussed in my last video. So those kids who are new on my channel who did not watch that video, so you can subscribe and watch and you can learn about whole numbers. ठीक है, आप जो बच्चे आज ही चैनल को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, वो सब्सक्राइब करके सभी वीडियोस को देख सकते हैं चैप्टर 2 और चैप्टर 1 से रिलेटेड. तो ये सेकंड वीडियो है चैप्टर 2 का, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2A. ओके किड्स, तो आज आप एक्सरसाइज 2A स्टार्ट करेंगे मेरे साथ. ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So kids, this is exercise 2A. We will start with question 1. Fill in the blanks. So first fill up is the smallest natural number is, those who watched my last video they know very well about the smallest natural number. जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो देखा था, मैंने बताया था इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में कि नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, तो उन बच्चों को आंसर पता चल गया होगा. तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1. Okay बच्चों, that is 1. So we will write here 1 because natural number starts from 1. Okay, 1 से इन्फिनिटी तक कहीं भी नेचुरल नंबर जाते हैं, बट होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0. कोई भी आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, यू कैन से दैट 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, बट द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1. नाउ second fill up, the predecessor of 100 is, so I discussed about predecessor also. So how to find predecessor? Just subtract 1 from the given number. कोई भी आपको नंबर दिया है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसका predecessor आ जाएगा. मतलब predecessor is the number that comes just before the given number. Okay, जो just उसके पहले आता है. 100 से पहले, just पहले क्या नंबर आता है? 99. Okay, so the predecessor of 100 is 99. Okay kids, the successor of 0. Now how to find the successor? Successor वो नंबर होता है जो किसी भी नंबर के जस्ट बाद में आता है, उसमें आप 1 ऐड करके उसका आंसर निकाल सकते हैं. जैसे कि इसमें सक्सेसर ऑफ 0 पूछा हुआ है, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा? 1. ओके बच्चों, तो थर्ड का आंसर 1 हो गया. देन फोर्थ फिलअप इज every whole number on the number line is dash, then every whole number on its right. Okay, understand, first of all understand this fill up what they are saying कि सभी whole numbers एक नंबर लाइन पे, जैसे हम एक नंबर लाइन बनाते हैं ना, उस पे जितने भी whole numbers होते हैं वो डैश होते हैं. एवरी होल नंबर ऑन इट्स राइट, राइट वाले होल नंबर से वो क्या होते हैं, मतलब वो लेस देन होते हैं, ग्रेटर देन होते हैं. जो उसके राइट पे सभी होल नंबर्स दिए होते हैं तो वो लेस देन होते हैं, है ना, छोटे होते हैं. सो हेयर वी विल राइट लेस देन एवरी होल नंबर्स ऑन इट्स राइट. राइट से छोटे होते हैं. राइट पे जो नंबर्स दिखते हैं ना, उनसे लेफ्ट वाले नंबर्स सभी होल नंबर्स छोटे होते हैं. या फिर आप नेगेटिव भी होते हैं ना, वो इंटीजर्स में आपने देखा होगा नंबर लाइन पर. नेक्स्ट लास्ट फिलअप है हमारा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ डैश नंबर. येस, दिस पॉइंट ऑल्सो वी डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो. इन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में हमने डिस्कस किया था कि सभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वो क्या माने एक होल नंबर भी होता है. ठीक है, बट all whole numbers cannot be natural numbers. Okay kids, so here we will write whole. The answer is whole number. Okay, so just revise all the fill-ups. First was the smallest natural number is 1. Then second was
the predecessor of 100 is 99, the successor of 0 is 1, every whole number on the number line is less than every whole number on its right, every natural number is a whole number. Okay, but every whole number cannot be a natural number. Okay, दिस वॉज क्वेश्चन 1. वी हैव फिनिश्ड क्वेश्चन 1, हमने कंप्लीट कर दिया है. अभी क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं. ओके किड्स, क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 2A इज राइट 3 कंसेक्यूटिव सक्सेसर्स ऑफ 999. सो हाउ टू फाइंड द सक्सेसर्स, एज आई टोल्ड यू. पहले तो आपको सक्सेसर समझना है, फिर कंसेक्यूटिव सक्सेसर हम डिस्कस करेंगे. सक्सेसर वो होते हैं जो किसी भी नंबर के जस्ट बाद में वो नंबर आता है. ठीक है, जैसे कि अभी हमने एक फिलअप किया था कि 99, सपोज आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल. जैसे 99 के जस्ट बाद अगर सक्सेसर आपको निकालना है तो 100 होगा. ठीक है, आप उसमें 1 प्लस करते जाओ तो उसके सक्सेसर्स निकलते जाएंगे. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ कंसेक्यूटिव सक्सेसर्स. कंसेक्यूटिव मीन्स मतलब विदाउट टेकिंग एनी गैप, मतलब कोई भी नंबर बीच में छोड़े बिना कंटिन्यूसली आपने कंटिन्यूटी में सक्सेसर्स निकालने हैं. जैसे कि वेरी सिंपल एग्जाम्पल आई विल गिव. 1 का सक्सेसर आपको कंसेक्यूटिव सक्सेसर निकालना हो तो 1 का होगा 2, फिर 3, फिर 4, कोई भी बीच में नंबर मिस नहीं करना है. ठीक है, तो ये कंसेक्यूटिव होता है. अभी 999 का अगर हम निकालें 3 कंसेक्यूटिव सक्सेसर तो क्या होगा. ओके किड, जस्ट ऐड 1 इन 999. सो वी विल ऐड जस्ट 1. So we will get 1000. Okay, 999 plus 1 is 1000. This is first consecutive successor. Now after that we will add 1 in 1000. ठीक है, अभी इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट सक्सेसर आ जाएगा, दैट इज़ 1001. नाउ 1001 में आपको एक प्लस करना है तो आपका एक और कंसेक्यूटिव सक्सेसर आ जाएगा 1002. So we have got these 3 consecutive successors of 999. तो आप ऊपर सभी लिख दीजिए. पहला था 1000, उसके बाद हमने निकाला 1001, then it was 1002. So these are the 3 consecutive successors of 999. 1000, 1001, 1002. तो ये सक्सेसर +1 ऐसे करते जाओ तो निकलते जाएंगे. 3 है तो 3 हमने 3 बार किया है. अगर 4 कंसेक्यूटिव पूछता तो एक बार और करते. 1002 के बाद क्या आ जाएगा 1003. ऐसे आप जितने मर्जी निकाल सकते हैं. ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन 2 था. अभी देखिए क्वेश्चन 3 में आपको क्या फाइंड आउट करना है. राइट 3 कंसेक्यूटिव प्रीडिसेसर ऑफ 2001. सो क्वेश्चन 3 में आपको प्रीडिसेसर निकालने हैं, कंसेक्यूटिव प्रीडिसेसर ऑफ 2001. तो अब प्रीडिसेसर क्या होता है. सो द प्रीडिसेसर ऑफ एनी नंबर इज़ द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर. क्या मतलब है इसका कि प्रीडिसेसर वो नंबर है जो कि आपको जो दिया हुआ नंबर है उसके जस्ट पहले आए. ठीक है, उसको -1 करके आप देखेंगे तो वो उसका प्रीडिसेसर आ जाएगा. जैसे 2001 है, यहाँ पर हम -1 करेंगे 2001 एंड -1 इट विल बी 2000. ओके बच्चों, तो ये इसका प्रीडिसेसर आ गया 2000. अभी ये एक आया है, अभी 2 और निकालना है, टोटल 3 आपको निकालना है. ठीक है, अब ये जो अभी 2000 है इसमें से 1 माइनस करना है. ठीक है, तो आपका नेक्स्ट एक और प्रीडिसेसर आ जाएगा. 2000 -1 इक्वल्स टू 1999. बैक काउंटिंग जैसे आपने सीखा होगा छोटी क्लास में, बैक काउंटिंग करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा. फिर 1099 में से माइनस करना है 1 तो आपका एक और प्रीडिसेसर आएगा 1998. ओके, सो वी हैव गॉट दीज 3 प्रीडिसेसर्स. पहला क्या था 2000, फिर हमने निकाला 1999 और फिर था 1998. तो ये 3 प्रीडिसेसर्स थे, कंसेक्यूटिव प्रीडिसेसर्स ऑफ 2001. ओके किड्स, या सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन 2 and 3. आगे चलते हैं, अगर आपको ये समझ आ गया है तो. ठीक है बच्चों, तो इस तरह आप कितने भी प्रीडिसेसर किसी भी आपको उसका आप इजीली निकाल सकते हैं. आपको जितने मर्जी बोले जाएं, आप
अगर आपको मेथड पता है, आपको डेफिनेशन पता है प्रीडिसेसर और सक्सेसर की, आप इजीली निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन 4 देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन 4 ऑफ एक्सरसाइज 2A इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट विच इज़ ग्रेटर। आपको दो दो नंबर्स दिए हुए हैं, पेयर दिया हुआ है नंबर का, है ना। पेयर्स में कितने होते हैं? 2 होते हैं ना। तो उन दोनों में से आपको ग्रेटर नंबर बताना है, ठीक है। आपको कंपेयर करना है। यस, कंपैरिजन का भी मैंने वीडियो बनाया था, अगर आपने वो देखा है, जिन बच्चों ने देखा है उनको रूल्स के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी पता चल जाएगा। मैंने बहुत इजी रूल्स बताए थे, कंपेयर कैसे करते हैं, ठीक है, नंबर्स को। अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको बहुत इजीली आसानी से आंसर मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। फिर भी जो बच्चे नए हैं, मैं आपकी हेल्प के लिए बता देती हूँ कैसे देखते हैं। पहला रूल है, आपको नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करने हैं, कितने डिजिट्स हैं दोनों नंबर्स में। जैसे कि इसमें देखो, ये 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट नंबर है, तो नहीं पता चलेगा, है ना। अब क्या करेंगे? अब हम देखेंगे सबसे बड़ा प्लेस वैल्यू 1000 है ना, सॉरी 100 है ना, तो 100 वाला डिजिट्स देखेंगे। अगर 100 वाले डिजिट्स एक छोटा है एक बड़ा है, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं ना कि बड़ा नंबर कौन सा है। बट अगर दोनों सेम है, जैसे इसमें 7 है, यहाँ भी 7 है, 100 प्लेस डिजिट, तो अब कैसे चेक करेंगे? फिर आपको 10 प्लेस डिजिट पे जाना है, ठीक है। यहाँ पर 4 है, इधर 0 है। अब देखिए, अब आपको पता चल गया होगा कौन सा बड़ा है। 4 बड़ा है 0 से, है ना। इट मीन्स 400, दिस इज 740, दिस इज 704। सो विच नंबर इज ग्रेटर? वी विल राइट आंसर हेयर डाउन। तो हम यहाँ नीचे सभी अपने आंसर्स यहाँ लिखेंगे। पहले का आंसर कौन सा बड़ा है, वो वाला नंबर आपको नीचे लिखना है, 740। ओके, 740 इज़ ग्रेटर। आई होप यू अंडरस्टूड कैसे बड़ा आया है, आपको समझ आ गया होगा। क्योंकि देखिए 7 सेम था, फिर हमने 10 प्लेस डिजिट कंपेयर किया, यहाँ 4 था, इधर 0 था, तो 4 बड़ा है, इसीलिए 740 बड़ा है 704 से, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पार्ट में 2 नंबर्स हैं, फर्स्ट है 860 और सेकंड नंबर है 86। तो पहला रूल है डिजिट्स देखिए, नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो आपको आंसर पता ही चल गया होगा, 3 वाला बड़ा है ना, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा है। सो 860 इज़ ग्रेटर। ओके, सो हेयर वी विल राइट आंसर इज़ 860, तो इसमें 860 बड़ा है। ओके बच्चों, तो थर्ड क्वेश्चन में हम देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। 7382, 7283। अब देखो 7000 प्लेस पे तो दोनों डिजिट सेम है, तो हम कंपेयर करेंगे 100 प्लेस वाले डिजिट्स, ठीक है। 3 और ये 2, तो कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है ना, तो इट मीन्स फर्स्ट वाला नंबर बड़ा है। 7382 इज़ ग्रेटर देन 7283, ठीक है। हम बड़े वाले नंबर्स लिख रहे हैं आंसर में। ओके किड्स, नाउ क्वेश्चन 4, फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन 4 इज that number is 8,139 and this is 80,06,139. So rule number 1 is, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक द नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। कंपेयर करने के लिए कौन सा बड़ा है छोटा है, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लेते हैं। तो पहले वाले नंबर में कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। देन इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला बड़ा है ना, क्योंकि मैंने बोला भी है 80 लाख और ये 8 लाख है ना। सो 80,06,139 इज़ ग्रेटर देन 8,139, तो ये वाला बड़ा हमने नीचे लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हम कंपेयर कर सकते हैं नंबर्स को। आप अच्छे से रूल पढ़िए, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है उसमें मैंने और डिटेल में डिस्कस किया है कंपेयरिंग के जितने भी रूल्स हैं, ठीक है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में भी इस तरह के क्वेश्चंस और भी दिए होंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये CBSE NCERT में सिलेबस सेम ही है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन वेरी, ओके, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा कम हो सकते हैं, बट चैप्टर, नेम ऑफ चैप्टर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके किड्स, सो क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 2A इज ट्रू फॉल्स। आंसर ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू फॉल्स का आंसर देना है। तो ये मैंने फिल कर लिया है, बट ये रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। हम चेक करेंगे ये करेक्ट आंसर्स हैं या नहीं है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहले हम स्टेटमेंट को समझेंगे, फिर चेक करेंगे क्या ये फॉल्स है या फिर इसमें ट्रू आएगा। ओके, सो ट्रू को आप शॉर्ट में
टी भी लिख सकते हैं, फॉल्स को एफ भी लिख सकते हैं, मैंने फुल फॉर्म लिखा है, नो प्रॉब्लम, आप एग्जाम में टी एफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, इज इट ट्रू और फॉल्स? इफ़ यू नो द डेफिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स यू कैन गेट द आंसर। अगर आपको पता है कि होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो आप ये पता लगा सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है या ट्रू है। चलिए तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स वो होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, इंक्लूडिंग ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स, बट नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1। ओके, नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता है। अब बताइए ये जो स्टेटमेंट है, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, क्या ये फॉल्स ही है या फिर ट्रू है? ये फॉल्स है, ठीक है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर होल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है बच्चों, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है बट नेचुरल नंबर 1 से होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी होल नंबर हैज़ इट्स प्रीडिसेसर। सभी जितने भी होल नंबर्स हैं, क्या सभी के प्रीडिसेसर होते हैं? देखो अभी प्रीडिसेसर क्या होता है, उसके जस्ट पीछे वाला नंबर है ना। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, मैंने आपको बताया था, है ना। तो 0 से पीछे तो और कुछ नहीं आता, फिर डेसिमल में आ जाता है ना। डेसिमल वाले नंबर्स को हम होल नंबर्स में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट, ओके। देन 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, यस, सबसे छोटा होल नंबर 0 है। द प्रीडिसेसर ऑफ एवरी 2 डिजिट नंबर इज़ अ सिंगल डिजिट नंबर। ये कह रहे हैं कि क्या जितने भी प्रीडिसेसर निकालते हैं हम 2 डिजिट नंबर के, सभी के आंसर सिंगल डिजिट में आते हैं? नहीं आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको 2 डिजिट नंबर मैं अगर 12 देती हूँ, 11, चलो 11 ले लेते हैं, 11 2 डिजिट नंबर है, उसका प्रीडिसेसर 10 होगा, वो भी 2 डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ओके बच्चों। नेक्स्ट देखिए, बिटवीन एनी 2 नॉन कंसेक्यूटिव होल नंबर्स देयर लाइज अ होल नंबर। कोई भी नॉन कंसेक्यूटिव मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो कंटिन्यूसली नंबर्स हम लिख रहे हैं, लाइक 0 1 2 3 4 5, है ना। नॉन मतलब आप लिख सकते हैं जैसे 0 के बाद 2 लिख दो, 2 के बाद 4 लिख दो या 5 लिख दो, ठीक है। बट हमारा स्टेटमेंट क्या है, क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसी भी 2 नॉन कंसेक्यूटिव होल नंबर्स के बीच में जो लाई करते हैं वो सभी होल नंबर्स होते हैं। यस, सभी तो होल नंबर्स होते हैं ना, 0 से लेके जितने भी नंबर्स हैं होल नंबर्स ही हैं, चाहे वो नॉन कंसेक्यूटिव हो या कंसेक्यूटिव हो, ओके बच्चों। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके। सो दिस वाज क्वेश्चन 5, वी हैव फिनिश्ड। तो आज के लिए बच्चों इतना ही था। एक्सरसाइज 2A हमने फिनिश कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से ये कॉन्सेप्ट को समझिए कि होल नंबर्स क्या होते हैं और प्रीडिसेसर सक्सेसर क्या होता है। बट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जो बच्चे नए हैं, और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बट नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, और मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखा करिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए, ठीक है। मैथ्स में A to Z सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ भी हम स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कुछ स्किप कर दिया तो फिर आपने मिस कर दिया है काफ़ी कुछ, इसका मतलब, ठीक है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।